Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 23717106, and we do have a third dedicated line, that's 2371 7117. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. Good evening, Ambrish. Good evening. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्रा हाजिर है। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सवाल पूछने के लिए हमें सीधे फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 पर, और हमारा तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं एस रंगभाष्य। Thank you. The top stories. Despite the pandemic, country's agriculture sector grows 3.9%, says Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. 3 IPOs to hit the markets next week to raise nearly 2,400 crore rupees. And Brent crude oil futures fall this week, while US crude rise for the third straight week. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि महामारी के बावजूद कृषि क्षेत्र में अब तक 3.9% की वृद्धि हुई है। शेयर बाजार में अगले सप्ताह आ रहे 3 नए आईपीओ लगभग 2,400 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेंगे, और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल के फ्यूचर्स मूल्य में इस सप्ताह गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी क्रूड में लगातार तीसरे सप्ताह तेजी का रुख रहा। और आज की पहली खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि महामारी के बावजूद कृषि क्षेत्र में अब तक 3.9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की कृषि प्रोत्साहन नीतियों और किसानों की कड़ी मेहनत के कारण संभव हुआ है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि देश का कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। श्री तोमर ने कहा कि देश की लगभग आधी आबादी कृषि पर आधारित है, इसलिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार न सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, बल्कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि, ढांचागत निर्माण और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने की भी कोशिश कर रही है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, किसानों को उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने, कृषि को बाजार से जोड़ने और कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को तलाशने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। Well, let's start taking phone calls, and joining us very first this evening is Mahesh from Delhi. Good evening, Mahesh, and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening, sir. Yeah, go ahead. Put your question. So actually, last week I heard of some, there was some controversy with the Axis Mutual Fund. Though I couldn't go through the full article actually. So, I mean, how deep it is, and how can I safeguard my investments there? Okay. Yes, there has been an issue with Axis Mutual Fund, 2 fund managers. 2 fund managers of officially 2 fund managers of Axis Mutual Fund have been suspended by the company, and the company has taken note of it itself, and they are rumored to be, so far, the speculation is that these people, the 2 fund managers indulged in, did some front running, and there were many stories around that. And
I'm still awaiting the outcome of the forensic audit which they have commissioned about that, and they have reported that it is expected in some time. If there is an element of truth in this, then I'll be very scared. Then I'll be very disappointed more than scared. But as of now, I don't think you need to worry much because the fund that I see of Axis Mutual Fund, these two fund managers were responsible primarily for the ETFs and other large cap oriented funds. And otherwise too, the front running, I'll be very disappointed in the sense that I don't expect I'll be keeping off any fund company where it gets proven that it happened. And there is a possibility because work from home in the last 2 years and things, many of the process or procedures might have become a little lax. So nothing to do right now, but be watchful and we will let you know. Yeah. Dhiren, just for the benefit of our listeners, what exactly is front running? Is it akin to insider trading? Yes, it is insider trading in a fund and trying to benefit because mutual funds are supposed to buy, if the mutual fund is planning to buy a certain stock or a certain set of stocks, and if that information is given to somebody else and who tries to benefit from it, by buying it beforehand, because when the fund company will buy it, the price will go up. That is front running. So trying to benefit from the actions of a fund manager beforehand, which is an insider trading of sorts in a fund manager, in a mutual fund, that is front running. ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मुंबई से हमारे श्रोता प्रभात इंतजार कर रहे हैं। प्रभात, नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सभी मार्केट मंत्र एक्सपर्ट को जी। मैं काफी सालों से मैं ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मेरा सवाल धीरेन्द्र कुमार जी से है। मैंने 2018 को 2 म्यूचुअल फंड में अप्लाई किया था और पहला ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेब्ट फंड और दूसरा HDFC प्रूडेंशियल फंड डिविडेंड। तो ICICI वाला तो ठीक चल रहा है। HDFC फंड का नाम क्या है? क्योंकि HDFC का अभी मर्ज हो गया है। HDFC का नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया। अभी वो मर्ज हो गया था जून 18 में जी। तो मेरे को इस फंड के बारे में जानकारी करनी है, ये कैसा है, आगे कैसा चलेगा। क्योंकि ये मर्ज होने के बाद में मेरे यूनिट भी कट गए थे, तो मेरे को इसके बारे में जानकारी चाहिए। ओके जी। जी हाँ, ये बहुत समय से इस फंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पे थोड़ी बहुत सुधार हुई है इसके प्रदर्शन में हाल फिलहाल, और जब सुधार के आसार शुरू ही हुए थे तब तक के बाजार में भारी गिरावट शुरू हो गई है। उसके बावजूद देखिए इसका लंबे समय का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा है, तो हाल फिलहाल का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। और लेकिन कोई बहुत डिसअपॉइंटिंग भी नहीं लगता। और अभी हाल फिलहाल इसका प्रदर्शन पिछले 4-6 महीने से यहाँ पे भारी सुधार दिखी थी, लेकिन अभी बाजार की गिरावट के दौर में यहाँ पे भी ये फंड भी धाराशाही हुआ है। राइट, let's go across to Amritsar from where we have Prem Sagar joining us on the program. Good evening and welcome to Market Mantra. नमस्कार। नमस्कार जी। अमृतसर से प्रेम सागर बोल रहा हूँ। जी प्रेम सागर साहब, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये पूछना है जी, ये म्यूचुअल फंड है ये कितने ज्यादा लेने चाहिए? इसमें कोई रिस्क तो नहीं होता कोई? ओके, अपर लिमिट की बात कर रहे हैं। हाँ, यस। फंड अलग अलग तरीके के होते हैं। बहुत सारे फंड है जो कि कितने होते हैं, डेट फंड, इनकम फंड, लिक्विड फंड। वहां पे उस तरह का रिस्क नहीं है जैसा इक्विटी में आपको दिखता है। लेकिन बहुत सारे इक्विटी फंड है जो कि बहुत रिस्की होते हैं। यहाँ पे बाजार में गिरावट होती है तो यहाँ पे भी भारी गिरावट होती है। और ये शेयर बाजार में सीधा पैसा लगाने की तुलना में कम रिस्की है, लेकिन बाजार के रिस्क से ये आपको बचाते नहीं है। तो अगर आप इस उतार चढ़ाव से अगर आप परिचित नहीं है, अगर आप नहीं झेल पाएंगे, तो इसमें बिल्कुल शेयर बाजार जैसा उतार चढ़ाव भी यहाँ देखा जाता है। अगर उससे आप अगर आप रिकंसाइल नहीं कर सकते हैं तो इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए।
धीरेन्द्र जी, इसमें कोई अपर लिमिट भी है क्या, जैसे वो कह रहे थे? नहीं, म्यूचुअल फंड में वो अपर लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना लगाए। और जब अपने लिए आपको कुछ रूल बनाना चाहिए कि अगर आपका ढेर सारा जिंदगी भर का जीवन जमा पूंजी अगर इसमें लंबे समय के लिए लग रहा है तो कोशिश करें कि 3-4 फंड में लगाए, ढेर सारे फंड में न लगाए, और 3-4 फंड में स्प्रेड करके। और जब बहुत बड़ी रकम अगर आप लगा रहे हैं तो देखिए कि ये पैसा आपके पास एक साथ होने के बावजूद भी आप एक साथ ना लगाएं। अगर ये बड़ी रकम है और जरूरी रकम है आपके अपने कॉन्टेक्स्ट में, तो उस हिसाब से अगर मुझे लगता है कि अगर किसी के पास जिंदगी भर की जमा पूंजी अगर निवेश करना हो और अगले 10, 15, 20 साल के लिए करना हो, तो उस पैसे को 2-3 साल में स्प्रेड करके बांटना चाहिए। अब 2-3 साल स्प्रेड करके लगाना चाहिए। अगर वो कमाई आपकी 1-1.5 साल की है तो तब भी आपको ये पैसा 4 महीने 6 महीने में स्प्रेड करके, क्योंकि बाजार में लगाने जब बाजार के में जब भी आप कोई बड़ी रकम लगाते हैं और उसके बाद भारी गिरावट से, तो वो आपके लिए बड़ी बेचैनी करता है और आप उस समय आप अपना पैसा बड़े गिरे हुए बाजार में पैसा निकालने के बाद आप दोबारा से नहीं हो सकते। और पंजाब से हमारे श्रोता गुरुदर्शन लाल लाइन पे मौजूद हैं। गुरुदर्शन जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सादिक सर, कैसे हैं, आपका हाल? जी बहुत बढ़िया, आप बताइए, आप सवाल पूछिए। सर मैं गांव कैरो पंजाब से बोल रहा हूँ, गुरुदर्शन लाल चलोत्रा पंजाब से बोल रहा हूँ जी। आपका जो विषय है बहुत अच्छा है, जो आपने चुना है म्यूचुअल फंड बारे, यही है ना आपका विषय? जी बिल्कुल। और हर रविवार ये जो टॉपिक है हम इस पे चर्चा करते हैं और हमारे साथ देश के जाने माने म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार जुड़ते हैं। हाँ जी सर जी, हमारा प्रश्न ये है आपसे निवेदन कि हम जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो, आपकी हैसियत से जो जितना सेफ रह सके वो कितना लगा सकते हैं, हमारा ये सवाल है। जी धीरेन्द्र जी, पैसा लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि जब अगर बड़ी रकम लगा रहे हैं तो आप समझे कि आप कहाँ लगा रहे हैं। बिना समझे हुए किसी भी निवेश में कोई भी निवेश नहीं करना चाहिए। और निवेश करने में सबसे पहला नियम है कि आप निर्धारित करें कि कौन सा पैसा, कितना पैसा आपको कितने दिनों के लिए लगाना है। आपके पास हो सकता है कुछ पैसा हो जिसकी जरूरत पड़े, कुछ पैसा ऐसा हो जिसकी जरूरत आपको 1-2 साल 3 साल में पड़े, और कुछ पैसा ऐसा होगा जो कि आपको कई सालों तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कई सालों तक जिस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी उस पैसे को ही इक्विटी में लगाना चाहिए। जिस पैसे की आपको 2-3 साल 4 साल में जरूरत पड़ेगी उसको डेट फंड में लगाइए। जिस पैसे की जरूरत आपको कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में, कुछ महीनों में उसकी पड़ सकती है उसको लिक्विड फंड में रखिए। इन फंड में लगाने से और म्यूचुअल फंड में आपको जो बेसिक फायदा है कि आप तेजी से डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। और जब भी बड़ी रकम लगानी हो इक्विटी में तब उस पैसे को कभी भी एक साथ न लगाएं, भले ही आपके पास एक साथ पैसा इकट्ठा हो गया हो। Right. Let's take our next caller. We are joined by B.K. Panchal from Jhansi. Good evening, Mr. Panchal, and welcome to the program. Good evening, sir. Yeah, go ahead. Put your question. धीरज सर को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरी उम्र 36 वर्ष है। मैं एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और पिछले 7 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी म्यूचुअल फंड में भी 4-5 स्कीम हैं जिनमें मैं 3-4 साल से SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं NPS के बारे में ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ऑटो चॉइस लगा हुआ है मेरे फंड में, अभी मैं उसको एक्टिव चॉइस में कन्वर्ट कराना चाह रहा हूँ। Right. तो मेरे लिए कहाँ तक सही रहेगा, ये किस फंड में मैं जाऊँ एक्टिव चॉइस में, ये जानना चाह रहा हूँ सबसे जी। Yes. ऑटो चॉइस के बजाय 30 साल के हैं और आप एक्टिव चॉइस में जाना चाहते हैं, मेरी सलाह होगी कि आप जैसा व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड से परिचित हो गया है, इक्विटी बाजार के उतार चढ़ाव से फेमिलियर हो गया है, उनको एक्टिव चॉइस जरूर लेना चाहिए। और बल्कि तो अभी मुझे लगता है कि अभी चूंकि आपके पास काफी समय है, आप अगर 58 साल या 60 साल की उम्र में रिटायर करेंगे तो एक्टिव चॉइस में जाइए और 75% अधिकतम इक्विटी में लगाइए, क्योंकि आप इक्विटी से परिचित हैं। और इक्विटी से उनको जरूर उनको बचना चाहिए जो कि
इस तरह के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाएंगे आसानी से। और हमारे वेबसाइट पे आपको रेस्पेक्टिव फंड, जो 6-7 कंपनियां जो फंड मैनेज करती हैं, उनके इक्विटी फंड का प्रदर्शन देख करके आप चुनाव करें। और 75% इक्विटी अगले 4-5 साल तक आपका रह सकता है। उसके बाद आप उसको ग्रेजुअली कम करना शुरू करें, और वो भी आप 8-10 साल पहले भी अगर इसकी तैयारी शुरू करते हैं, आप 50 साल के हो जाते हैं और 60 साल की उम्र तक 10 साल में अगर आप रिटायर करेंगे, और उस समय आप अपना कुछ पैसा 5% या 10% वहां पर से अगर आप फिक्स इनकम में मूव करना शुरू करते हैं, तो वो भी, क्योंकि अभी काफी समय है, इक्विटी में बड़ा रिस्क होता है अगर आप कम समय के लिए लगाएं, लेकिन इक्विटी में पैसा जरूर लगाना चाहिए अगर ये पैसा काफी सालों के लिए लगा रहेगा। और चूंकि आपका पैसा अगले 14 साल कम से कम वहां लग सकता है, तो जरूर अधिकतम जो लगाया जा सकता है वहां तक लगाना चाहिए। और यहाँ पर हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back, listeners. You are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on All India Radio, and as always, we are joined by our mutual fund expert Dhirendra Kumar to answer all your queries, questions, and doubts related to mutual funds. And let's take our next caller. We are joined by Ashish from Mumbai. Good evening, Ashish, and welcome to Market Mantra. Hi, good evening, all of us. I want to ask Mr. Dhirendra about in current situation where share market is so volatile, and I have been investing in share market plus mutual fund, but my observation is that in current scenario, if you see the prices of shares are going down much lower, higher way compared to my mutual fund. So what is your opinion? We should invest more in mutual fund rather than an individual share? Because if you see the impact is lesser in the mutual fund rather than in directly buying through a share. Thank you. Yes, Dhirendra. Yeah, effectively, you are getting the same, you are getting the exposure to the, whether you invest in shares directly or you invest in a mutual fund. The only difference is that you are able to diversify instantly. The moment you put your 5,000 rupee or 10,000 rupee in a diversified equity fund, or even in a less diversified equity fund, you are effectively investing in 20 stocks, 20 shares, 50 shares, or 70 shares at one go. And there you have the averages working for you, which is some of them will be going up, some of them will be going down dramatically, some of them will be average performer. Which if you are buying shares and if you are well diversified there, your experience even with shares will be about the same. Depends, of course, the different exposure that you have, that can provide you a different experience. For example, if you look at last week itself, the small cap index is down about 8.5%. The mid cap index is down 7.5%, and Sensex is down 5.22%. And if you look at all the IPO, there is an IPO index that is down nearly 9.28%. So that is very sizable. When I compare that with the category average, funds have fallen far less. The multi-cap funds are down just about 4.7%. So, but this is a very narrow view. I'm referring only to 1 week, and you don't invest for 1 week. So, yes, mutual funds provide you a more stable experience. You get instant diversification. And one should not be investing in shares directly if you really don't have the temperament as well as the understanding to choose and build a good, well-diversified portfolio. So, it depends. Right. We have Nanda Gopal joining us from Delhi, but before we take his call, let's take a look at some news from the primary market.
Three initial public offers, IPOs, will hit the primary market next week in order to raise a total of 2,387 crore rupees. The first IPO is by a fertilizer company, Paradeep Phosphates, which will open on the 17th of May. The IPO by luxury watch retailer Ethos will open on 18th May, and the IPO by eMudra, India's largest licensed certifying authority, will open on the 20th of May. Paradeep Phosphates is expected to raise 1,502 crore rupees, while Ethos offer size is 472 crore rupees, and eMudra plans to garner 413 crore rupees through these offers. और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से नंद गोपाल जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या नमस्कार चाहते हैं। सभी को नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है जितेंद्र जी से कि टाटा डिजिटल फंड के बारे में बतलाएं। मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था, तो टाटा डिजिटल फंड। जी थैंक यू। टाटा फंड सारे टेक्नोलॉजी फंड का काफी बुरा हाल है, लेकिन इससे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ये फंड बहुत पुराना नहीं है और जब से लॉन्च हुआ था तब से अब काफी रफ्तार से ये बढ़ा था, और अभी तक आपका पैसा गिरावट के बावजूद, हाल फिलहाल यहाँ गिरावट देखी गई है, और उस गिरावट के बावजूद भी आपका पैसा 3.5 गुना हो गया है। और ये बहुत पुराना फंड नहीं है, 5 साल से थोड़ा ज्यादा लंबा पुराना है, ज्यादा कुछ पहले ये लॉन्च हुआ था। और टेक्नोलॉजी में चूंकि अभी हाल फिलहाल गिरावट हुई है, उसका इससे असर दिख रहा है, लेकिन अगर आप कई सालों के लिए होल्ड करेंगे तो इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। Right. Let's move on and take our next caller. We have Ravi Narayan joining us from Bhilai. Good evening, Ravi. And what's your question? Good evening. My question is, apart from profit in a mutual fund, what are all the factors which impact the performance of a mutual fund? All the companies, their profit, apart from the profit apart of from the the companies. profit. Yeah. Thank you. No, one is that, not necessarily, if companies are profitable, if they are growing their earnings, but the stock price is not going up, then that is a problem. Then even the dividends actually matter. Primarily, mutual fund performance, equity fund performance is entirely guided by the performance of the underlying stocks. Whether that return comes by way of capital appreciation or gain, or in the form of a dividend. And so that's it. And my sense is, and you are right that, profit of the underlying companies matter, because that is the ultimate driver of the stock price as well. It is very unlikely that a company will be losing money and the stock will keep going up. So profit matters, but in the short run, there is a possibility that there are loss-making companies which keep going up on expectation, on some kind of sometimes speculation which actually carries on for much longer than we expect it to carry on. So variety of things that drive, and of course there is a periodic demand-supply mismatch by investors getting very excited or very pessimistic about the market. That also has a huge bearing. So primarily stock performance, underlying stock performance is the driver. Yeah, and joining us next is Ranjan Kumar from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरे को जानना है कि म्यूचुअल फंड में 2 से 3 हजार का SIP करना चाहता हूँ सर। तो एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक लार्ज कैप में करना चाहता हूँ। तो ये जानकारी चाहिए कि मुझे कितना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, और नाम भी बता दीजिए कि किसमें करें तो अच्छा रहेगा। राइट। नहीं, आप अगर पहली बार लगा रहे हैं, पहली बार अगर आप बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ आपको सलाह देना चाहूंगा जिसकी मांग आपने नहीं की है। एक तो अगर आप बाजार में लगा रहे हैं तो आपको इक्विटी फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ऑल इक्विटी फंड में मत लगाइए, खासकर ये जो बाजार का दौर है इसमें लगाइए। एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए, जहां पर आपका 1/4 पैसा डेट में लगा रहेगा, और बाजार जब बाजार के बढ़त में बाहर पार्टिसिपेट करता रहेगा, और बाजार की गिरावट तो उस तरह से नहीं गिरेगा जो कि एक नए निवेशक को बहुत ही हतोत्साहित करता है।
तो इस तरह के फंड से आप शुरुआत कीजिए, और उसके बाद भी जब 1-2 साल आप इसमें लगा लें, और एक तो कि एक साथ पैसा मत लगाइए, और इस पैसे को स्प्रेड करके हर महीने लगाइए, या अगर आपके पास एक साथ अगर पूंजी इकट्ठा हो भी गई है तब भी उसको 12 महीने 18 महीने में स्प्रेड करके लगाइए, क्योंकि बाजार के ऊंचे स्तर पे पैसा लगाने से भी अक्सर नए निवेशकों को बड़ी ज्यादा निराशा होती है। तो और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड अगर मुझे 1-2 गिनाना होगा तो मिराई एसेट का हाइब्रिड इक्विटी है, या SBI का हाइब्रिड इक्विटी फंड है, ये कुछ अच्छे विकल्प हैं। और 1-2 साल करने के बाद आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में अपना पैसा मूव करें और नया पैसा भी उसी में लगाएं। और हमारे श्रोता जयपाल जी रेवाड़ी से हमारे साथ हैं। जयपाल जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते सर, मार्केट मंत्रा टीम को। धीरेन्द्र सर से मेरा प्रश्न है सर कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? गोल्ड में इन्वेस्ट करने के पास 2 विकल्प हैं। एक तो कि आप स्टॉक ब्रोकर के आजकल बहुत सारे फाइनेंशियल ऐप अवेलेबल है, और उसमें आप निवेश कर सकते हैं अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक का एक्सेस हो और आधार कार्ड हो, जो कि KYC करने के लिए उसकी जरूरत आवश्यकता होती है, तो आप कर पाएंगे, और आपके पास स्मार्टफोन। तो ये 3 चीज होने पे आप उसमें स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे। और वहां पे एक ये नया विकल्प है, कुछ सालों से उपलब्ध है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि आपको सोने के दाम जितना बढ़ता है उसके ऊपर से आपको 2.5% सालाना ब्याज भी देता है। और तो आज आप अगर सोने में पैसा लगाते हैं और 8 साल के बाद जो सोने का दाम होगा, आपको उतना ही पैसा रिडेम्पशन के समय इन बॉन्ड की मियाद का जो टेन्योर है वो 8 साल है। और इसमें जब आप पैसा लगाते हैं तो आज जो दाम है और उस समय जो दाम होगा, आपका पैसा लगेगा आज के दाम पे, और 8 साल के बाद जो दाम होगा उस दाम पे आपको पैसा मिलेगा। तो और हर साल आपको 2.5% सालाना ऊपर से ब्याज भी मिला करेगा। ये एक विकल्प है। दूसरा है गोल्ड फंड, जिसमें कि आप आम म्यूचुअल फंड की तरह आप SIP कर सकते हैं, जितना रकम आप आसानी से निवेश करना चाहते हैं। Right. Let's take a look at the oil scenario. Snapping 3 weeks of rising streak, Brent crude oil futures fell this week, but US crude oil managed to end the week higher, marking off a 3rd straight weekly percentage gain. Brent ended the week at $111.55 per barrel on Friday, while US crude settled at $110.49. That was the highest close for WTI since the 25th of March. US gasoline futures soared to an all-time high after stockpiles fell last week for a 6th straight week. Oil prices have been volatile, supported by worries a possible EU ban on Russian oil could tighten supplies, but pressured by fears that a resurgent COVID-19 pandemic could cut global demand. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। धीरेन्द्र जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Despite the pandemic, country's agriculture sector grows 3.9%, says Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. 3 IPOs to hit the markets next week to raise nearly 2,400 crore rupees. And Brent crude oil futures fall this week, while US crude rise for the 3rd straight week. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि महामारी के बावजूद कृषि क्षेत्र में अब तक 3.9% की वृद्धि हुई है। शेयर बाजार में अगले सप्ताह आ रहे 3 नए IPO लगभग 2,400 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेंगे। और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल के फ्यूचर्स मूल्य में सप्ताह गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी क्रूड में लगातार तीसरे सप्ताह तेजी का रुख रहा। That's it in this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye.